हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हमारे लेसन 11 वर्क एंड एनर्जी में एनर्जी को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में हम इसको स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी क्या है। सो व्हाट इज एनर्जी एंड डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? So first of all, let us see what is energy. So energy can be defined as the ability of the object to do work. So that is energy. Now let us see few examples. First of all, as we have seen that sun is the biggest and natural source of energy. That means it is a natural source, and we can also get energy from the nuclei of atoms. The interior of the earth and the tides also have energy, but in case of science, energy has a definite and precise meaning. Now as we are seeing few example, a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, then the wicket is thrown away. So as we have just seen that what is energy? Energy is the ability to do work. So here the fast moving cricket ball is doing work on the wickets. So as we know that when this energy, the object which does work, it loses energy, and the object on which work is being done, it is gaining energy. So that means the cricket ball is losing energy and the wicket is gaining energy. Second example, we can take a raised hammer which when falls on the nail placed on the piece of wood, so it drives the nail into the wall. So that means the hammer, it is also possessing, or it is also having the ability to do work. So it is having more energy. After doing work, it loses its energy and the nail gains its energy and get placed, or it is driven into the wall. Now another example, we can also see a balloon filled with air, and when we press it, we find the change in its shape. So all these three examples, these three objects have acquired the capability to do work. So the objects having the capability to do work is said to possess energy. And as we have already studied, that the object which is doing work, it is losing energy, and the object which is on which work is being done gains energy. Now let us see that any object which is possessing energy can do work. So energy possessed by the object is measured in terms of the capacity of doing work. So the SI unit of energy is same as that of the work, that is joule or Newton meter, and Newton is kilogram meter per second square. This is the Newton, and Newton meter is joule. So it is multiplied by meter, so it comes out to be meter square. We can write here meter square, kilogram meter square per second square. So this is the unit of work or energy. Now 1 joule of energy is the energy required to do 1 joule of work, and the larger unit of energy is known as kilojoule. So as we know, kilojoule means 1 kilojoule is equals to 1000 joule. So we are also having a question here, the third question, that express 14.5 kilojoule energy, 14.5 kilojoule energy into joule. So we can solve this question here. So as we know, 1 kilojoule is equals to 1000 joules. So 14.5 will be equal to 14.5 into 1000. We will remove this point. ये एक जीरो इसमें से कैंसिल होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 14500 joules. So in this way we can calculate. This is the answer of third question. Now let us study the different forms of energy. Different forms of energy are the solar energy that we are receiving from the sun, light energy, heat energy, chemical energy.
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. Now, mechanical energy is the sum of kinetic and potential energy that we will study afterwards. What is kinetic and potential energy? Now, first of all, define energy and what is its SI unit. So, as we have just seen, the ability of the object to do work is energy and SI unit is joule. What are the different forms of energy? As we have just seen here, that these are the different forms of energies. Solar energy, light, heat, chemical, electrical, tidal, wave, wind, sound, and mechanical energy. Now, what is solar energy? Solar energy is the energy that we are receiving from the sun. And right, one application of wind energy, as we know that wind energy is generally used, and this wind energy gets converted into mechanical energy where it is used to work physically different processes, and also this wind energy is used to generate electricity. So hope students this worksheet must be clear to you in English. अब हिंदी में एक बार देखते हैं इस वर्कशीट को कि ऊर्जा क्या है. जैसा कि हम देख रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं. अब ऊर्जा हमें जैसे सूर्य है, सूर्य जो है प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का सबसे बड़ा. हमें परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ज्वार भाटा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है. लेकिन विज्ञान में हम एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं. इसे समझने के लिए अभी जैसे हम कुछ उदाहरण लेंगे. सबसे पहले हमने देखा कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कह रहे हैं, ऊर्जा कह रहे हैं. और इसमें उदाहरण अगर हम लें तो जैसे क्रिकेट की गेंद है, ये स्थिर विकेटों से टकराती और दूर जा गिरती है. तो यहाँ पर क्रिकेट की गेंद जो कार्य कर रही है यानी इसमें ऊर्जा है, और विकेट से टकराने के बाद इसकी ऊर्जा विकेटों में स्थानांतरित हो जाती है. तो क्रिकेट की गेंद में ऊर्जा का ह्रास हो रहा है और विकेट जो है वो ऊर्जा गेन करते हैं. उसी तरह से जब हथौड़ा जो है वह लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी कील पर प्रहार हम करते हैं तो वह कील लकड़ी के अंदर ठोक देता है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्य हो रहा है और किया गया कार्य जैसे भी हमने कहा कि ऊर्जा के बराबर होता है. और अगर किसी गुब्बारे में अगर हम हवा भर रहे हैं तो उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन आता है. तो आकृति में परिवर्तन आ रहा है यानी कि जब हम दबा रहे हैं हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं. तो कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है. तो इन सभी उदाहरण से हम देख रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली है. और यहाँ पर वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा है. तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है. तो इसी प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में माना जाता है. अब यहाँ पर भी जो ऊर्जा का मात्रक है वही है जो कार्य का मात्रक है, यानी कि न्यूटन मीटर, या इसको हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. और एक जूल क्या है, एक जूल कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है वह एक जूल होती है. तो कभी कभी ऊर्जा जो है उसके बड़े मात्रक या किलो जूल का भी हम उपयोग करते हैं, और ये उपयोग जनरली होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. तो एक किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल. अभी थर्ड क्वेश्चन में जैसे हमारे आंसर दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 14.5 किलो जूल्स को हमें जूल में बदलना है. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 किलो जूल बराबर 1000 है, तो 14.5 किलो जूल बराबर कितना हो गया, 14.5. इसको हम 1000 से अगर गुना करेंगे, पॉइंट हटाने पर क्या हुआ, 1 0 आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 14500 इतना जूल्स. तो इस तरह से हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलो जूल को, तो हमें आंसर जूल में प्राप्त होगा. अब हम देखते हैं कि ऊर्जा के कितने रूप हैं. आप देख रहे हैं कि ऊर्जा के अनेक रूप हैं. सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक, विद्युत, ज्वारीय, पवन ऊर्जा, ध्वनि और यांत्रिक ऊर्जा. यांत्रिक ऊर्जा को हमने दो में यांत्रिक ऊर्जा में हम बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की और एक स्थितिज ऊर्जा की.
तो ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं जो कि हम अपने देख रहे हैं आंसर। सेकंड यहाँ पर हमें मिलेगा, ये हमारे दूसरे प्रश्न का हमें आंसर मिलता है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जैसे अभी हमने देखा कि एसआई मात्रक इसका कार्य के समान है, यानी कि जूल है, या इसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये इसका मात्रक है। और ऊर्जा की परिभाषा अभी हमने देखा कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड का भी हमने देख लिया विभिन्न रूप। थर्ड को हमने कैलकुलेट किया था अभी, किलो जूल को जूल में कैसे बदलना है, इसको 1000 से गुना करके। और सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा जो हमें सूरज के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो प्राकृतिक ऊर्जा है, उसे हम सौर ऊर्जा कह रहे हैं। पवन ऊर्जा का कोई अनुप्रयोग लिखिए। पवन ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और जो है किसानों के द्वारा इसको यूज किया जाता है और बिजली बनाने में भी पवन ऊर्जा का यूज होता है। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।